session. It's the first session of new chapter, chapter 14, and it is, the name of the chapter is statistic. The title of the chapter is statistics. Sit properly. See how you are sitting. Okay. Now, children, which subject you all are learning now? Mathematics, है ना? All right. But there are many branches of mathematics. In mathematics, you learn different branches. The first one you started learning when you went to nursery class, your first standard. All right, 1, 2, 3, 4, कुछ numbers. फिर addition of numbers, subtraction of numbers. So all these 4 basic operation: division, multiplication, addition, and subtraction. Okay, it is in which branch of mathematics? उसको क्या कहते थे? Arithmetic. That is called arithmetic. Is one of the branch of mathematics. Understood? Yes. जब मैं आपको बोलूंगा, you will argue. Now she was also watching you. हाँ? सही है ना? चलिए, pay attention, please. Okay. Now, arithmetic is not only the branch of mathematics. Next, you learnt about diagrams. कुछ first standard, second standard, third standard, you used to draw circle, triangle, and you used to recognize the figure also. All these figures comes in another branch of mathematics called geometry. Correct? Geometry. But in 9th standard, you learned different geometry. You learned Euclid's geometry. वहाँ सिर्फ figures नहीं, वहाँ angles, lines, rays, triangles, similar triangles, है ना? Sorry, congruent triangles, similar triangles you will learn in 10th standard. Okay? चलिए. After that, somewhere in 6th standard, you learned unknown numbers. How many rupees I have in my pocket? Can you guess? Yeah, very good. X. वो तो पता नहीं है. कोई बोलेगा 50, कोई बोलेगा 100. जो 50 बोल रहा है, he is guessing. Yeah, she is guessing कि 50 होगा. No, you just say, sir, you have X rupees in your pocket. So that number is unknown. Unknown है तो unknown number use किया. फिर X plus X is what? X into X is what? तो ये सब जो unknown numbers, variables आया, polynomials आया, addition, subtraction, multiplication, division of polynomials also you learned this year. It is in another branch of mathematics called algebra. उसको क्या कहते हैं? Algebra. It's called algebra. All right? है ना? All right. अब you all must be watching IPL. No, some of you must be watching. उसमें बहुत सारे informations देते हैं. This bowler played so many matches, took so many wickets, his economic rate is so and so. ऐसा सब information मिलती है ना? Yes. We get information of any player. वो लोग कहाँ से लाते information? वो स्कोरर है ना? मैच स्कोर करते हैं, बुक होती है, बुक में स्कोर करते हैं. नाउ दे ऑल डू डिजिटली. पहले बुक हुआ करती थी और बुक का रिकॉर्ड दूसरी बुक में एंटर करते जाते थे. सो थैंक गॉड कंप्यूटर्स आने के बाद वो काम आसान बन गया. एंड नाउ यू कैन गेट डिजिटली. एक बटन दबाया, पूरी इंफॉर्मेशन सामने. लेकिन आज धोनी ने कितने रन बनाए वो रिकॉर्ड में जाएगा, है ना? आज शामी ने कितने विकेट्स ली वो रिकॉर्ड में जाएगा. वो ऐड करते जाते हैं ये सारी इंफॉर्मेशन. सो वॉट एवर इवेंट्स टेक प्लेस, वॉट एवर आउटकम्स ऑफ द इवेंट्स आर ऑब्जर्व, दे आर रिकॉर्डेड, दे आर नोटेड. यू अंडरस्टैंड? ओके. कैंसर,
एक जानलेवा बीमारी है, इट इज अ फटल डिजीज, लाइफ टेकिंग डिजीज, ऑलराइट, एंड दे हैव फाउंड आउट, दे हैव डिस्कवर्ड द वेरियस कॉजेज ऑफ कैंसर, है कि नहीं? बोले धूम्रपान करने से कैंसर होता है, तो तंबाकू चबाने से कैंसर होता है। अब बहुत सारा केमिकल वाला खाना हम खा रहे हैं, दूध मिलावटी है, ओके, सो ड्यू टू दिस एडल्ट्रेशन, मिलावट की वजह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल्स एंटर अवर बॉडी, एंड इन अ लॉन्ग रन कैंसर इज कॉज्ड। ये सारी इंफॉर्मेशन, ये रीजंस जो ढूंढ लिए, कैसे मिला? अरे पीपल गो फॉर सर्वे, whoever is suffering from cancer, those patients are visited by people, surveyor, scientists, research institute से जाने वाले लोग, laboratory से जाने वाले लोग, health center से जाने वाले लोग, and they have certain questions to ask them. Those questions are scientifically based या science based, और वो क्वेश्चन के जवाब से पूरा इंफॉर्मेशन तैयार करते हैं और फिर सोचते हैं, हाँ यही कारण इसको कैंसर इतना हुआ क्योंकि पूरी लाइफ उसने स्मोकिंग की है, इसको कैंसर इसलिए हुआ है क्योंकि इसने पूरी लाइफ वो मावा खाया है, क्या बोलते हैं, गुटखा खाया है, तंबाकू वाला खाती है ना तू, हाँ चबाती रहती है मुंह में, नहीं करना चाहिए किसी को, हंसने की जरूरत नहीं है, आई एम जस्ट हैविंग लिटिल बिट ऑफ फन, बुरा नहीं लगा ना? खाना मत, बंद कर दो। ओके, नाउ सी चिल्ड्रन, यस, अब एक कैंसर का पेशेंट ऐसा था, वन ऑफ द पेशेंट ऑफ द कैंसर, ही नेवर स्मोक्ड ड्यूरिंग हिज लाइफ, ही नेवर एट एनी tobacco or chewed any tobacco, वो अच्छा एक्सरसाइज वाला जीवन जीता था, अच्छा खाना खाता था, अच्छा पानी पीता था, he took great care of his health, he used to have balanced diet, तो उसको कैंसर कैसे हो गया? फिर थोड़ा रिसर्च किया, भाई क्या खाता था, तो ये सब सब्जियां कहां से लाता था, भाई ये नवसारी की मार्केट से, नवसारी की मार्केट की सब्जी कहां से आती थी, तो ये एरिया से आती थी, ये सब रिसर्च, ये सब ढूंढना, सब सवाल का जवाब ढूंढना, एक के बाद एक नए सवाल उठते जाएंगे और उस सवाल का जवाब ढूंढना पड़ेगा। वो ढूंढा, फिर बोला कि ये एरिया से आता है, वहां कौन सा फर्टिलाइजर डालते हैं, तो ये केमिकल फर्टिलाइजर यूज करते हैं, वो लोग तो नेचुरल फर्टिलाइजर यूज ही नहीं करते, फिर वो पेस्टिसाइड्स डालते हैं, तो ये तो सब केमिकल्स है, तो वो केमिकल्स रूट सिस्टम से प्लांट में गया, वो गेहूं में गया, वो टमाटर में गया, वो भिंडी में गया, और वो भिंडी हमने खाई, तो वो केमिकल हमारे शरीर में भी गया, और आहिस्ते आहिस्ते ग्रेजुअली that chemical accumulated in our body. Children, जो केमिकल हमारे शरीर में जाता है ना, वो बाहर नहीं निकलता है, जो फेशियल मैटर के साथ नहीं निकलता है, वो शरीर में चिपक जाता है, कहीं पे रुक जाता है, और when it gathers in large quantity which is enough to cause cancer, कैंसर हो जाता है। अच्छा, of course it takes sometimes 5 years, 10 years and even 50 years for that accumulation to take place and then cause cancer. लेकिन हम लोग कैंसर को इनवाइट कर रहे हैं by taking chemicals. चलिए, let me come to the point. ये सारी इंफॉर्मेशन, ये सारे कॉजेज कहां से मिला? जो इंफॉर्मेशन गैदर की गई वहां से, the information which was gathered by the surveyors, by the researchers, from there conclusions were made for the cause of particular happening, for the cause of particular event. जो घटना घटी उसका कारण ढूंढने में वो इंफॉर्मेशन बहुत मददगार हुई। अब ये जो इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं ना हम लोग, उसको कहते हैं डेटा। इसको कहते हैं क्योंकि लिख कर लाते हैं ना, द इंफॉर्मेशन इन रिटन फॉर्म, दैट इज कॉल्ड
Now information can be of many types, but when an information is brought in written form, उसे कहते हैं डेटा। तो ऐसे कई चीजों का डेटा हमारे पास है। कैंसर वाले का डेटा है, एड्स वाले का डेटा है, द टॉपमोस्ट बॉलर, टॉपमोस्ट विकेट कीपर, टॉपमोस्ट बैट्समैन, द बेस्ट नंबर 1 फुटबॉल प्लेयर या फुटबॉल प्लेयर ऑफ सेंचुरी, ये सब करते हैं ना हम लोग। कैसे डिसाइड करते हैं? उनके सब रिकॉर्ड से। आर यू गेटिंग मी चिल्ड्रन? तो ये सारा जो रिकॉर्ड इकट्ठा करना, जो इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना, ये जो स्टडी है मैथमेटिक्स में, उसमें भी नंबर्स ही है, आंकड़े ही आते हैं, इसमें भी नंबर ही है ना। सो दिस ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इज कॉल्ड statistics. It is called statistics. It is called statistics. So today we are going to get introduced to yet another branch of mathematics called statistics. All right. उसको समझने के लिए और इस चैप्टर में हम क्या करने वाले हैं? स्टैटिस्टिक इट्स अ वास्ट ब्रांच, वास्ट रीजन ऑफ मैथमेटिक्स। बहुत सारा पढ़ाई करना है, ये तो बिगिनिंग है। इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट डेटा, एंड डेटा आर ऑफ 2 टाइप्स, क्लासिफाइड डेटा एंड नॉन क्लासिफाइड, या ग्रुप डेटा एंड अनग्रुप डेटा। और अनग्रुप डेटा को ग्रुप डेटा में कैसे हम कन्वर्ट करते हैं, हाउ वी फॉर्म अ ग्रुप डेटा फ्रॉम अनग्रुप डेटा, दैट वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस चैप्टर। And we are going to learn 3 measures of central tendency: mean, median and mode. किसी भी डेटा, जो भी इंफॉर्मेशन है, उसका मीन कैसे ढूंढते हैं, उसका मोड कैसे ढूंढते हैं, उसका मीडियन कैसे ढूंढते हैं, उसकी क्या फॉर्मूला है, और वो तीनों चीज क्या है, व्हाट इज मीन, मीडियन एंड मोड। इतना हमें इस चैप्टर में पढ़ाई करना है। आर यू गेटिंग मी? बट वी विल बी डीलिंग विथ अनग्रुप डेटा। जो अनग्रुप डेटा है उसका मीन, मीडियन और मोड ढूंढेंगे। एंड इन 10th स्टैंडर्ड दिस चैप्टर विल कंटिन्यू एंड देयर वी शैल फाइंड मीन, मीडियन एंड मोड ऑफ, वेरी गुड चिल्ड्रन, ग्रुप डेटा। चलिए, तो अब अनग्रुप डेटा क्या है? पहले तो डेटा क्या है? कीप पेन एंड बुक रेडी। आई एम गोइंग टू गिव यू वन टास्क। आज मैं आपको एक टास्क देने वाला हूं। प्लीज प्लीज हरी अप, हरी अप। गेट रेडी विथ योर बुक एंड पेन। चलिए, get ready. First understand me. See what you are supposed to do. You have a backyard garden. आपके घर के पीछे एक छोटा सा गार्डन है, उसमें 25 रोज प्लांट्स है। कितने रोज प्लांट्स है? अब what task I am giving you? You have to bring me the information of number of blossomed plant roses. पूरा खुद खिला हुआ। All right? Roses. Don't write anything just now, children. Listen to me. 20 rose plants. हाँ, 20 बताओ। मैं 25 बोला? ओके, ठीक है। 20 रोज प्लांट्स। ओके, सो आपके बैकयार्ड गार्डन में 20 रोज प्लांट्स है।
Now I have asked you to give me the information about number of roses on each plant. तो आप क्या करेंगे? You will have to visit the place, that is the garden. आपके बैकयार्ड गार्डन में आपको जाना पड़ेगा, पहले प्लांट को विजिट करना पड़ेगा, उसके ऊपर गिनती करनी पड़ेगी कितने रोजेज है, 5. तो मैंने लिख दिया 5. अब सेकेंड रोज प्लांट को मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं, गिना 7. और आज तीसरे रोज प्लांट के पास गया, देखा एक भी ब्लॉसम्ड फ्लावर नहीं है, सो आई पुट 0. So 1, 2, 3, 3 plant I visited. How many plants I have to visit? मैं लिख दूंगा विजिट करके, आपके हिसाब से लिख दो. Are you getting me? Common sense यूज करना while you are writing. मैं अपना लिखूंगा, आप अपने आप का लिखो. चलिए, don't look on the board. Write quickly. You just have to write 20 numbers, 20 different numbers. Sometimes it can repeat as well. You never know. On 2 plants, you may have equal number of flowers, right? All right, stop. I hope you have written. Here is my data. First plant. Stop writing, I said now. Even if it is incomplete, don't write. First plant has 5 roses. No roses are there on the third plant. 11, 2, 6, 5, 4, 3, 1, 8, 7, 14. 10. 1, 2, 6, 4, 3, 5. All right. So here is the information. ये क्या है? अरे information in written form. This is information in written form. And now let me ask you, what information? Information regarding the number of roses on the rose plant which exists in the backyard of your garden. ठीक है. This information in written form is called data. So ये रही data. This is your data. And here जो भी numbers हैं, कितने numbers हैं totally? They are called observations. So what is your first observation? 5. बोलो बोलो. 5.
इसको कहते हैं ऑब्जर्वेशन. So totally how many observations are there in this data? 20 observations. Do you understand? Yes. Did you understand? Yes. Okay. So the information in written form is called data. All right. And the number of values, each value that you observe or you find in the data is called observation. It's called each value that is found in the written information is called right. And these are not organized. ये जो observations है वो organized नहीं हुआ. क्यों? ऐसे लाइन में नहीं भी गए होंगे हम लोग. ऐसा थोड़ी कि फर्स्ट प्लांट को ही विजिट किया, फिर हमने शायद दूसरे प्लांट को विजिट किया, फिर तीसरे. मतलब कुछ भी लिख सकते हैं. मैंने 2 यहां नहीं लिखा, 2 यहां लिख दिया और 4 यहां लिख दिया. Information does not change. Information remains the same. But observations are not very well organized. इसको ऑर्गेनाइज करके नहीं लिखा है हमने, ग्रुप बना के नहीं लिखा है हमने, इंडिपेंडेंटली लिख दिया है, scatteredly लिख दिया है. We have scattered all the observations. You understand? So these observations are not in organized form. उसको कहते हैं अनग्रुप डेटा, जिसने ऑब्जर्वेशंस ऑर्गेनाइज नहीं किया है, ग्रुप में नहीं बनाया है. दैट इज कॉल्ड अनग्रुप डेटा. 3-4 टर्म हमने देखे. एक डेटा. व्हाट इज डेटा? द इंफॉर्मेशन इन रिटन फॉर्म इज कॉल्ड. नेक्स्ट वी सॉ ऑब्जर्वेशन. व्हाट इज ऑब्जर्वेशन? The value of the value, each value in given is written information या data is called, each value is called observation. How many observations are there in this data? It's called number of observations. The total number of observations in a data is called number of observations. It's called. So what is the number of observations in this data? 20. Or what is ungrouped data? A data in which observations are not organized. A data in which observations are not organized is called ungrouped data. चलिए. Now another task. लेकिन now this is a group task. ये पूरे जो क्लास में बैठे हैं उसका एक ग्रुप बनाया. And you have to give me this information. All right? The information regarding the number of married couples, okay, in 18 houses of Amarkant Society is as under. Amarkant Society. Amarkant Society. All right? So how many families are there in this society? 18. And what task are you assigned? You have to visit each house and ask them, how many married couples are there in your house? वो बोलेंगे 8, कोई बोलेंगे 2, कोई बोलेंगे 3, कोई बोलेंगे यहाँ कोई नहीं है मैरिड कपल. ऐसा हो सकता है? मैरिड कपल होंगे. ऑलराइट? ओके. हो सकता है ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर हो, वो मैरिड कपल हो, लेकिन ग्रैंडफादर या ग्रैंडमदर एग्जिस्ट नहीं हो रहे, मे बी नॉट सर्वाइव. ऑलराइट? तो फिर कपल नहीं कहेंगे, मैरिड पर्सन है. ऑलराइट, हम कपल निकाल देंगे वर्ड और मैरिड पर्सन निकाल देंगे. ऑलराइट? हस्बैंड भी मैरिड है, वाइफ भी मैरिड है, तो 2 मैरिड है. आर यू गेटिंग मी? फादर मदर. चलिए. अब व्हाट्स योर नेम? मेघना. Okay, sit. Tell me, first family we visited. अपने ग्रुप टास्क कहाँ है? तो बोलिए, कितने मैरिड कपल है उस हाउस में? से लाउडली. 18. अभी ये कॉमन सेंस की बात है ना? कोई ऐसा घर है जिसमें 18 मैरिड कपल हो? वो राजमहल था.
राजा की 25 रानियां होती है। मैंने बोला था, यहां भी बोला था, कॉमन सेंस यूज करके लिखो। अभी मैरिड कपल 18 बोल रहे हैं। इसलिए कहता हूं कि ध्यान दो। मैंने क्या पूछा, वो ध्यान दो। चलिए अब बताइए। 2 ओके, सो हस्बैंड एंड वाइफ 2 ही है। यस यू नेक्स्ट हाउस में विजिटिंग, बताइए। 3 उधर फादर मदर है और ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर में से एक ही है। सो 3 पर्सन आर मैरिड है। यस यू 4 नेक्स्ट। अरे बढ़ते जा रहा है। यस 6 આવું લોજિક વાપરવાના કે તમે એક એક વધારતા જવાના કે પહેલા ફેમિલી વિઝિટ કે હાઉસ વિઝિટ કરીએ તો એવું બધી સોસાયટીમાં ગોઠવેલા, અહીંયા 4, અહીંયા 5, અહીંયા 6, અહીંયા 7, અહીંયા 8। लॉजिक थोड़ा कॉमन सेंस यूज करो। सिर्फ एक है फादर मदर और 2 बच्चे, लेकिन मदर इज नॉट देयर, सिर्फ फादर है, तो एक ही मैरिड है। चलिए है ही नहीं, फादर मदर बेचारे एक्सीडेंट में चले गए, सिर्फ बच्चों है, बड़े बच्चे हैं, लेकिन कोई भी मैरिड वहां नहीं है। यस अब बता 2 कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 होना चाहिए, राइट? यस 1 यस 4 यस 3 यस 6 यस 0 यस 2 yes you second bench 3 yes 1 yes 5 yes 7 4 नहीं है एक yes सर ये सर चार कैसे हो? हाँ ठीक है, ऐसे ही क्लास में पढ़ाई हो सकती है, जो अंडरस्टैंड। हाँ वो मैं बताता हूं। ओके अच्छा, तो इसलिए कहता हूं कि ध्यान दो। अच्छा ऑल राइट, सो हमें ये भी इंफॉर्मेशन मिल गई इन रिटर्न फॉर्म। So here is another data. How many observations are there in this data? 8. This each value is for observation. All right. एक और चीज बता दूं अभी, इसको भी बॉक्स में मैं कर दूं। जो बॉक्स में है वो है डेटा। It is written information and it is information of number of married person in 18 houses of particular society, American society. All right. अच्छा प्लीज डोंट टॉक। डेटा 1 और यहां डेटा 2, ये डेटा 1 है, ये डेटा 2। व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू इन डेटा 1? यस हियर इट इज, मिनिमम वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन, मिनिमम वैल्यू ऑफ द of observation, short में observation. How much is that? 0. अब बोलो maximum value. Maximum value of observation क्या है? 15. Sure? On one particular rose plant there were 15 roses. अच्छा, what is the positive difference? Maximum value minus minimum value 15. 15 minus 0 5 कैसे हो गया? इसी में 5 होगा। चलिए चिल्ड्रन, ये जो मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू 0 है, वो माइनस करो
तो ये जो डिफरेंस आया, वॉट एवर इज द डिफरेंस, उसको कहते हैं रेंज ऑफ डेटा. What is that called? Range of data. It's called range of data. So what is the range of the first data? 50. अच्छा, what is the smallest value here? Minimum value? 0. Or maximum value? 6. So what is the range of this data? 6 minus 0 is 6. Suppose ये 0 नहीं होता है 1, ये भी 0 नहीं होता है 1, तो मिनिमम वैल्यू 1. अब एक काम कर, मिनिमम वैल्यू 1 और मैक्सिमम वैल्यू 6. So what will be the range of the data? 6 minus 1 is 5. The range of the data will be. Is that clear? आपकी समझ में आया? हमने 0 0 निकाल दिया. हर एक का माँ बाप तो है, माँ या बाप तो है ना? ये दो तो कम से कम लिखना चाहिए हमें, है ना? हम खुद लिख रहे हैं ना. हाँ जाइए हमें तो ये प्रमाण है. ओके, एक ही फैमिली ऐसा है बेचारा जिसका माँ या बाप नहीं है. हाँ ठीक, चलिए. Did you understand well? So today that is enough for us in this chapter statistics. What we learned, actually statistics क्या है? That is one of the branch of mathematics. And then we learned, yes, ये statistical data होता है. जो भी क्रिकेट के बारे में इंफॉर्मेशन या कोई डिजीज के बारे में इंफॉर्मेशन, कोई स्कूल के बारे में इंफॉर्मेशन, कोई गवर्नमेंट ऑफिस के बारे में इंफॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन है, ट्रेन का टाइम टेबल, वो भी एक स्टैटिस्टिक ही है. डू यू अंडरस्टैंड? तो स्टैटिस्टिक्स में क्या होता है? डेटा. हमने कौन से डेटा स्टडी किया? अनग्रुप डेटा. अनग्रुप डेटा में क्या होते हैं? वैल्यूज. व्हाट इज दिस ईच वैल्यू कॉल्ड? ऑब्जर्वेशन. और मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, व्हाट इज दैट कॉल्ड? सो चिल्ड्रन, दैट्स ऑल टुडे. ओके, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन. टिल देन, goodbye. Have a nice day.